Yes. So, properties of CTFT, continuous time Fourier transform. First one is linearity property, as we have seen in Laplace transform in Z transform. Uh, if there is input, there is a linear relationship in the input, then the same linear relationship will be reflected in the output. So that means if we are having a x1t signal, which is for which we are having a Fourier transform of x1 j omega, and if we are having a second signal x2t, and for which the Fourier transform is x2 j omega. And if we are having a linear relationship between these two signals, that means if x3t is equal to the linear relationship of x1t and x2t, that is x1t plus x2t, then the corresponding Fourier transform will be x3 j omega, that is equal to x1 j omega plus x2 j omega. That means what you have to do, just find the Fourier transform of x1t and x2t and just add them, right? The second property is time shifting property. देखो डिफरेंस नहीं है जो हमने प्रॉपर्टी लैप्लेस में डिस्कस किया था, जेड डिस्कस किया था, फूरियर सीरीज में डिस्कस किया था, जस्ट कन्वेंशन इज चेंज, बाकी द कंसेप्ट विल रिमेन द सेम, राइट? If we are having a signal xt for which the Fourier transform is x of j omega, then if we are shifting a signal by amount of t naught, t may be positive, t may be negative. That means if we have to calculate the Fourier transform of xt minus t naught, then the Fourier transform for this one will be e to the power minus j omega t naught x of j omega, right? Third one is time scaling. If we have scaled the time axis for amount of a, suppose we are having xt for which the Fourier transform is x of j omega, then if we have to calculate the Fourier transform of x of a t, then the Fourier transform of this x of a t will be 1 upon mod a, this positive value of a, and x of j omega by e, means you have to scale, you have to j omega scale also, omega scale also, means अगर टाइम स्केल हो रहा है, टाइम एक्सिस स्केल हो रहा है, तो ओमेगा एक्सिस होगा, फ्रीक्वेंसी एक्सिस होगा, वो भी क्या होगा, स्केल होगा बाय अमाउंट ऑफ ए, राइट? फोर्थ वन प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल. If the Fourier transform of xt is x of j omega, then the Fourier transform of x of minus t, it will be same, minus j omega. Just replace omega with minus omega. That will be the Fourier transform of x of minus t. Now the frequency shifting. जैसे हमने लैपलेस में देखा था कि एक्स टी इज इक्वल टू, अगर एक्स ऑफ एस हुआ करता तो ई टू द पावर एस नॉट टी, इसका फूरियर, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस माइनस एस नॉट, राइट? यहाँ पर क्या हो जाएगा, if we are having xt for which the Fourier transform is x of j omega, then if that Fourier transform of e to the power j omega naught t xt, इसका Fourier transform होगा x of omega minus omega naught. Just replace omega with omega minus omega naught, right? नेक्स्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी. डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी जैसे वहां पर हमने किया था, देखो रिलेट करके देखो इनको, बहुत कंसेप्ट क्लियर रहेगा. हमने वहां देखा था लैप्लेस में, अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि एक्स टी इज इक्वल टू, अगर एक्स टी का पूरे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है, देन अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, टी एक्स टी का, वो सॉरी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी करता हूँ, राइट? तो मुझे वहां पे मिला एस इंटू एक्स ऑफ एस. यहाँ क्या मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा. जस्ट रिप्लेस, जस्ट आपको क्या करना है, जे ओमेगा से उसको मल्टीप्लाई करना. हाँ आसिम कुछ बोल रहे हैं? हेलो. नहीं सर, ओके आगे सर. ओके ओके. नेक्स्ट इज, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होगा. इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं सिग्नल को ओवर द लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू टी, तो वहां पर मल्टीप्लाई आ रहा था, यहाँ क्या होगा, वही डिवाइड हो जाएगा. मतलब क्या होगा हमारे पास, एक्स ऑफ जे ओमेगा डिवाइड बाई जे ओमेगा, राइट? एक्स ऑफ जे ओमेगा डिवाइड बाई जे ओमेगा. कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. देखो मैंने आपको बताया था कि कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है. जैसे हमने देखा था कि कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू
multiplication in S domain, multiplication in Z domain, multiplication in frequency. That means if x1t whose Fourier transform is x1j omega and x2t Fourier transform is x2j omega, and if we are having a signal which is the convolution of these two signals, that means if x3t is equal to x1t convolution with x2t, then the Fourier transform of this will be what? X1j omega into x2j omega. Just multiply the Fourier transform. That's why convolution in time domain is equal to multiplication in frequency domain. क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत काम आती है. ठीक है. कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू, if convolution in time domain is equal to multiplication in frequency domain. ठीक है. नेक्स्ट इज पार्सेवॉल्स रिलेशन. पार्सेवॉल रिलेशन बेसिकली क्या करता है, देखो, इफ वी आर हैविंग अ सिग्नल xt for which Fourier transform is x1j omega, then integration over the limits minus infinite to plus infinite mod of xt square dot dt, इसका Fourier transform ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ओवर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट mod of x of j omega square dot d omega. इस सिग्नल को फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेट कर रहा है. तो 1/2 इंटीग्रेशन ओवर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x of j omega square mod of x of j omega square dot d omega. ठीक है. एंड दिस वन, ये ड्युअलिटी प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. देखो, इस प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग है, ये प्रॉपर्टी जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा. अगर हमारे पास कोई सिग्नल है, सिग्नल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल एक्स टी से, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास क्या है, कैपिटल एक्स ऑफ डी ओमेगा. ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका, राइट. तो इफ एक्स टी, द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी इज कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा, देन कैपिटल एक्स ऑफ टी, देखो यहां पर इतना सा आपको ध्यान रखना है कि क्या ड्युअलिटी प्रॉपर्टी हो रहा है. तो बेस न्यूमेरिकल भी अपन देखेंगे. देखो यहां क्या कर रहा हूं मैं, ये मेरे पास यहां पर ये कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा है, राइट. दिस इज कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा, राइट. अब देखो ये वाला मैंने क्या किया, ये कैपिटल एक्स तो है ही, जस्ट मैंने यहां पर इसका जो वेरिएबल है वो चेंज कर दिया. या ओमेगा इसका वेरिएबल था, मैंने यहां क्या ले लिया, टी. दैट मीन्स अब कैपिटल एक्स ऑफ टी, इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा, 2 पाई एक्स, ये स्मॉल एक्स ध्यान रखना, माइनस जे ओमेगा, या फिर माइनस ओमेगा लिख लेना इसको, जे ओमेगा की जगह इसको आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा, 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा. बात आ रही है समझ में? वेरिएबल को हम इंटरचेंज कर रहे हैं. ठीक है. ये प्रॉपर्टी क्लियर जब होगी, जब अपन इसमें बेस न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगी. सर ये वापस एक बार ड्युअलिटी. एक बार बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. और क्वेश्चंस जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं तो आंसर बहुत जल्दी आता है, अदरवाइज हम आंसर नहीं निकाल सकते, राइट. देखो एक्स टी, ये हमारा सिग्नल है स्मॉल एक्स टी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म देखते हैं कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा. ये हम करते आए हैं. ठीक है. अब मुझे क्या है, कहा गया है कि ये जो जे ओमेगा जो वेरिएबल था, इसको मैंने चेंज करके क्या कर दिया, टी. आपसे पूछा गया कि कैपिटल एक्स ऑफ टी, अब ये कैपिटल एक्स ऑफ टी है, ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन हमने जो फूरियर ट्रांसफॉर्म जो ओमेगा आता था उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, टी से. तो कैपिटल एक्स ऑफ टी, इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2 पाई, वो होगा 2 पाई और स्मॉल एक्स. ये देखो ये वाला जो एक्स था ना, यहां पर इसका वेरिएबल कितना है, टी. 2 पाई, यहां पर इसका वेरिएबल कितना होगा, माइनस ओमेगा. ये आपको चीज पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आना ही आना होता है एग्जाम में. और वो इस बिना प्रॉपर्टी, इसको बिना ड्युअलिटी को यूज किए आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, फंस जाओगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रॉब्लम, राइट. तो
हमने क्या किया, ड्युअलिटी में ड्वेल है, हमने वेरिएबल चेंज किया, ड्वेल ड्वेल यूज किया है, तो हमने वेरिएबल चेंज किया, इससे इजी हो गया। इसमें बेस न्यूमेरिकल अपन देखेंगे तब और क्लियर हो गए आप, ठीक है। तो अभी इतना सा ध्यान होना चाहिए, ओके सर। ड्युअलिटी प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये तो थे कुछ प्रॉपर्टीज जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है आपसे, और इनकी बिहाफ पे आप, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन ही ये होता है, यूज ही ये होता है कि आप प्रॉब्लम को है वो उसको कॉम्प्लेक्सिटी से बचा सकते हैं, सिंपलेक्स हो जाती है प्रॉब्लम, सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन पता है क्या होता है, पढ़ा है, कहीं सुना है? हैव यू हियर अबाउट सिग्नम फंक्शन? नहीं सुना? नहीं सर। नहीं सुना। बेसिकली सिग्नम फंक्शन क्या होता है, देखो बताता हूँ आपको, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ना, नेटवर्क फंक्शन सुना है सर, एनटी में। वो नेटवर्क फंक्शन होता है। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है, देखो ये सिग्नम हाँ फंक्शन मैंने ड्रॉ कर रखा है, आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा, ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन। दिस इज योर सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस जी एन, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एस जी ऑफ एन, एस जी एन ऑफ टी। देखो ये होता है ये वाला, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो दिस इज 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड -1 फॉर टी लेस देन 0, दिस इज योर सिग्नम फंक्शन। बात आई समझ में कि 1, सॉरी, ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होता है और लेस देन 0 के लिए -1 होता है, ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन। समझ में आया? अब मुझे बता सकते हो यस सर। कि इस सिग्नम फंक्शन को मैं यूनिट स्टेप की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? दिख तो आपको यूनिट स्टेप ही रहा है ना, ये लगभग लगभग कुछ कुछ शेप यूनिट स्टेप का दिख हाँ रहा है। यस सर, अगर नेगेटिव हम इग्नोर। नेगेटिव हटा दें हाँ तो यूनिट स्टेप हो जाएगा, लेकिन अगर इसी सिग्नल को मैं यूनिट स्टेप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, बता सकते हो? बताओ। सर, एक तो यूटी और हाँ देखो, बिलो। देखो मैं बताता हूँ आपको, आपके पास ये सिग्नल बना कैसे, देखो इसका फॉर्मेशन हम देखते हैं। ये हमारे पास सिग्नल था यूनिट स्टेप, दिस वन, ये यूनिट स्टेप सिग्नल हो गया, ये 1 हो गया और ये टी हो गया, राइट। वन मोर सिग्नल आई एम टेकिंग हियर, it is, this is, this one is, this is ut and this is u minus t। this one ना, यही तो है। अब what I have to do, we have to subtract these two signals। हमने पढ़ा है ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स, एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ा है ना, तो अगर मैं दोनों सिग्नल को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास कौन सा सिग्नल मिलेगा, बता सकते हो? सर, दोनों को सब्ट्रैक्ट। हाँ, मैंने आपको बताया था पॉइंट्स, पॉइंट वाइज सब्सट्रैक्शन एडिशन करते हैं। हाँ यस सर, वो वाला मेथड से। हाँ तो बताइए क्या मिलेगा, देखो। सर, इस तरफ वो नेगेटिव साइड वाला अगर करेंगे हम, मतलब 0 से लेस वाले में देखो -1, इसको, वो 1 आएगा। 0 से लेस वाले में 1 कैसे आएगा, इसमें से सर इसको मतलब वो माइनस करना, 0 माइनस 1, 0 माइनस -1। ये तो -1 है ही नहीं, ये तो +1 है, एक्सिस नेगेटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड तो 1 ही है ना, अच्छा हाँ हाँ यस सर, हाँ तो -1। -1 आएगा। देखो
और देन मैं इस तरफ 1। इस तरफ 1 आएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको बात करता हूं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी फॉर, सब्सट्रैक्शन की वैल्यू 1 आएगी फॉर टी ग्रेटर देन 0, आएगी नहीं आएगी? एंड -1 आएगी फॉर क्या, टी लेस देन 0, यही तो होगा भाई। 1 में से 0 को माइनस, यहां 0 है, 1 में से 0 को माइनस करो तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 वैल्यू रहेगी टी ग्रेटर देन 0 के लिए, और यस सर। 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा टी लेस देन 0 के लिए, यही रहेगा। ये कौन सा हाँ फंक्शन दिख रहा है सर। नीचे, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? यस सर। सिग्नम फंक्शन। सिग्नल। सिग्नल नहीं, यस सर। सिग्नम, सिग्नम, हाँ। SIGNUM, इसकी जो सिग्नम स्पेलिंग होती फंक्शन। है SIGNUM, S, दिस इज IGNUM, ये होता है सिग्नम, और शॉर्ट में हम लिखते हैं SGN ऑफ टी, राइट। आपको इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? सर वही फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाएंगे, फिर देखो इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सर -1 से 1 तक इंटीग्रेशन। हम यूटी सिग्नल है ना, यूटी, उसका हम यस सर। डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं करते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको बताया था ना, 3 कंडीशन जो हुआ करती। फर्स्ट वन, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। सेकंड वन, हाँ मैक्सिमम सर। मिनिमम फाइनाइट होना चाहिए। एंड थर्ड वन आपका डिसकंटिन्यूटीज फाइनाइट होनी चाहिए। दिस यूनिट स्टेप सिग्नल डज नॉट फॉलो द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज नॉट एन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। इसलिए we cannot directly calculate, we cannot directly calculate the Fourier transform of unit step signal। सर आपने तो कहा था कि हमारे कोर्स में जितने हैं वो सारे ये सारे रूल ये फॉलो करता है। करते हैं, लेकिन यूनिट स्टेप नहीं करता, यूनिट अच्छा। स्टेप नहीं करता, ठीक है। तो क्या हम इसका ट्रांसफॉर्म नहीं कैलकुलेट कर सकते? हम इसको बना सकते हैं, इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म। डायरेक्टली वी कैन नॉट कैलकुलेट, बट वी कैन मॉडिफाई दिस सिग्नल एंड देन वी कैन कैलकुलेट। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यूनिट स्टेप इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है सिग्नल सेंस सिस्टम। this plays a very big role in signal system, and we have to calculate for the Fourier transform. That's why we have to modify this signal accordingly, और modify करके we can calculate this Fourier transform। क्लियर है? ठीक है, तो देखो how we can modify this one, what we can write here, just a minute, yes, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दिस वन, we can modify this signal in this way, that means e to the power minus at ut minus e to the power at u of minus t, despite a tends to 0। क्लियर है? सर SGN ये डिनोट कर रहा है कि सिग्नम फंक्शन है। हाँ, SGN ये सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। दिस इज द ओके सर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन, राइट। अब देखो whenever दिस, ये वाला जो सिग्नल है ना, दिस सिग्नल इज, जो हमने लिखा था वो ही है। इसको मैं क्या लिखूंगा, ये सिग्नल है क्या, ये सिग्नल है आपके पास ut माइनस u ऑफ माइनस टी, जो हमने लिखा था अभी,
ये सिग्नल वही तो है, हाँ सर, हाँ लेकिन सर, हमने इसको मॉडिफाई किया है, तो यूनिट स्टेप का डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। व्हेन यू आर पुटिंग a इज इक्वल टू 0, तो e टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो ut e टू द हाँ पावर सर, 0 क्या होता है 1, u माइनस t, है तो वही चीज, लेकिन हमने हाँ इसको इस मॉडिफाई फॉर्म में क्या लिखा जिससे ये स्टेबिलिटी हो जाए। अब ये जो कर्व है वो आपका इनफाइनाइट पर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ये वाला। सो एक्सपोनेंशियल वाला कर्व है सर ये, है ना? हाँ, व्हेन t टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये कर्व जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। देखो यहां t टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितना होता है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। और t टेंड्स टू फाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करोगे e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, अगेन कितना हो गया, जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास ये कर्व स्टेबिलिटी को अप्रोच करेगा, इससे इस कर्व की स्टेबिलिटी हो जाएगी एंड दिस कर्व एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मॉडिफिकेशन आपको करना होगा जब आप सिग्नम फंक्शन का जस्ट यूनिट स्टेप सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। यस सर, मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर हम मॉडिफाई नहीं करेंगे तो सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, और ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है तो हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट नहीं करते। वी कैन नॉट कैलकुलेट द फूरियर ट्रांसफॉर्म बिकॉज दिस इज नॉट एन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल। To make this absolutely integrable signal, we have to modify this signal accordingly. And for this, we can use limit a tends to 0 to the power minus 80 ut minus e to the power 80 u of minus t. And how we can modify? When t tends to infinite, this becomes 0 because e to the power minus infinite 0. When t tends to minus infinite, e to the power minus infinite becomes 0. Clear? Now we can find out the Fourier transform easily. इसका तो फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हो। e टू द पावर माइनस एटी यूटी का क्या होता है, हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। इसका क्या यस होता सर, है, वन अपॉन ए माइनस जे ओमेगा। माइनस जे ओमेगा। यस सर, अब इसका तो कर सकते हो ना, तो यहां से हमने किया। यस सर। सर लिमिट का क्या होगा? लिमिट क्या, लिमिट अभी बाद में रखेंगे, अभी रुको। ये देखो, इसका करेंगे तो वन अच्छा, अपॉन ए प्लस जे ओमेगा माइनस वन अपॉन ए माइनस जे ओमेगा। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ए की वैल्यू मैंने जीरो रखा, टू वन बाई जे अपॉन जे ओमेगा। ओमेगा, यस सर, माइनस ए की वैल्यू जीरो रखा तो माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन जे ओमेगा, वन अपॉन जे ओमेगा प्लस वन अपॉन जे ओमेगा, टू अपॉन जे ओमेगा। दैट मीन्स सिग्नम फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, टू बाई जे ओमेगा, एंड दिस इज द कर्व फॉर दिस वन। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी इज टू बाई जे ओमेगा। क्लियर है? समझ में आती है बात? यस और नो? समझ में आ गया? यस सर, राइट। अब बाकी अपन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिकॉज टाइम हो चुका है, ठीक है? और कुछ इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स अपन आगे डिस्कस करें। क्लियर है? यस सर। ओके, थैंक यू। सर ये ग्राफ ज्वाइन क्यों नहीं हुआ ऊपर? ये ज्वाइन किए, टेन थीटा वाला कर्व है, कहाँ ज्वाइन होगा बताओ? अच्छा, तो मतलब एक्सेस पे ज्वाइन नहीं होगा जे ओमेगा पे? इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा ना। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, ये देखो ना, ये ओमेगा इज इक्वल टू जीरो है, समथिंग अपॉन जीरो कितना बनता है, इनफाइनाइट, तो ये ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट। यस जाएगा, सर, टच नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे टेन का ही तो होता है, टेन फोर्टी फाइव, सॉरी टेन नाइनटी कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो टेन का जो कर्व यस हम सर। लेते हैं, हाउ वी कैन ड्रॉ द कर्व फॉर टेन थीटा, दिस वन, ऐसे ही तो कुछ हम ड्रॉ करते हैं। ये देखो, जस्ट ये जो टेन थीटा जो कर्व होता है वो लगभग ऐसे होता है, ये कर्व होता है। हाँ सर। बिकॉज टेन जीरो, टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, टेन जीरो पर जीरो हो गया। हाँ तो सर। जैसे 45 हम करते हैं, 90 हम करते हैं, तो वो इनफाइनाइट पर चल जाता है। तो हाँ सर। वो वाला है, यहाँ पर ओमेगा जीरो जैसे हम रखेंगे तो कर्व कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की अप्रोच करेगा, इसलिए हमने इसको ज्वाइन नहीं किया। क्लियर है? रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी यस विल सर। डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस, राइट? ओके। ओके सर।
थैंक यू। थैंक यू सर।